Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And today, important concepts and themes which are very crucial for you to get success. Now, air defense systems, how they work. Now, this is very important for both PT and mains. But the question arises that in the prelims exam, the questions will be there on the basic principles behind these. For example, detection. So radars. So how radar functions. How intercontinental ballistic missile you can just make out. So radars are going to send out beams of electromagnetic radio waves through a transmitter. Now these waves are reflected by the objects they hit, such as an enemy aircraft, and a receiver is then collecting the returning radio waves. लेकिन आपको stealth, how the stealth technology is working, which the radar are not able to detect. Similarly, tracking, or for that matter, interception. So these are very, very important. Command, control, and communication system is interception. How they intercept. Now, this is also given over here. So interceptors are fighters that take on attacking enemy aircraft, especially bombers. So they can be scrambled at a moment's notice and they climb quickly to altitude. तो हमें एग्जाम के लिए पता होना चाहिए कितना altitude. Interceptors are equipped from air to air combat with cannons, rockets, visual range, beyond range. MiG-21 is an upgraded variant जो है is still in service. Dedicated, they are dedicated interceptors. फिर surface to surface air missiles. So क्या word लिखा हुआ है? Bird and butter of most air defense system. They are more effective than anti-aircraft. हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों. You know. So medium range vehicle mount system, short range, and then you have the heaviest, such as the Russian made S-400 system used by India. तो ये हमें आइडिया होना चाहिए. तो एग्जामिनेशन विल आस्क यू फ्रॉम हाउ मेनी किलोमीटर्स एंड ऑल दैट. एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी इज अगेन अ कॉन्सेप्ट, और यूएवी का रोल, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर. Actually, it is not necessary to actually shoot down an enemy aerial threat in order to neutralize it. EW system are diagnosed to disrupt, deceive and destroy. तो ऐसे मेंस के आंसर में भाषा बनानी पड़ेगी. ट्रैकिंग डाउन एडीज, तो इसमें वही है कि आपको देखना पड़ेगा कि कैसे एयरफोर्स इज वर्किंग, एंड इट इज अ टैक्टिकल एयर सपोर्ट, पैराट्रूप इंसर्शन, सप्लाई ड्रॉप मिशन. एक तो कुछ कीवर्ड्स है, सारे आपको याद नहीं करने. सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, operations target enemy with air defenses with missiles, UAVs. तो ये आपको कुछ कीवर्ड्स हैं, तो यहाँ पर बेसिक दिया हुआ, और बीच में आप देख सकते हैं कि हाउ IAI हारूप, loitering munition that India used to strike Pak. So Haroop is a loitering munition, and it characterizes a typical UAV, that is unmanned air vehicle. इसके पास एक एक्सप्लोजिव पेलोड होता है और वो हवा में रहते हैं. 9 आवर्स तक हवा में रह सकते हैं. आपने जो टारगेट होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और एक स्पेसिफिक टारगेट पे जाके वो अटैक कर देते हैं. इसीलिए उनको सुसाइड भी कहा गया है, कामिकाजे ड्रोन्स भी कहा गया है. और दे कैन बी लॉन्च विदाउट हैविंग टू प्री आइडेंटिफाइड टारगेट्स, अनलाइक द ओल्डर प्रिसीजन टारगेट्स, unlike the older precision guided weapons, I should say, that require exact coordinates before being launched. ड्रोन का जो कैमरा होता है वो ऑपरेटर को विजुअली स्कैन करने में मदद करता है, टारगेट को ढूंढने में मदद करता है, और जब आप उस पर कर सकते हो. यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द रियल टाइम इंटेलिजेंस, हारूप इज यूनिकली कैपेबल अगेंस्ट टाइम क्रिटिकल हाई वैल्यू रीलोक लोकेटेबल टारगेट. तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. हाउ पाक मिसलीव्स द वर्ल्ड, द स्टोरी ऑफ टेररिस्ट साजिद मीर. तो यही वही वाली बात है, सिर्फ साजिद मीर एक अकेला ऐसा नहीं है. ही हैज बीन मोस्ट वांटेड इन यूएस ऑल्सो, मोस्ट वांटेड इन इंडिया ऑल्सो, और रोल इन 2611 अटैक्स. तो हमें ये देखना है कि हाउ इंडिया हैज बीन डॉजली परसुइंग एंड देन गेटिंग सक्सेस ऑल्सो, जैसा हम तहूर राणा के केस में हम कह सकते हैं. सो अगेन ये एक बस न्यूज आया कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो नाम था, वो कैसे सब लोगों ने कोशिश की और उसके लिए बैकलैश भी हुआ, क्योंकि इट कैन बी कमर्शियली एक्सप्लॉइटेबल. लेकिन जियो स्टूडियो ने फिर बाद में मना कर दिया कि हमें ऐसा नहीं चाहिए. तो वही बात है कि अब इसको एप्लीकेशन फाइल की है एक मुंबई रेजिडेंट ने, एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ने, दिल्ली बेस्ड एडवोकेट ने, कोची रेजिडेंट एज एन एड फिल्म मेकर. सो वही बात है, जो पहले देगा उसके मतलब उसके नाम पर किया जाएगा. तो वही वाली बात है. तो ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है. और दैट्स ऑल व्हाट वी कैन से. सो इट इज अ काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन.
Section 9 of the Trademark Act 1999 says the trademark cannot be registered only if it is of such nature to deceive the public or cause confusion, contains or compromise any matter likely to hurt the religious sensibilities of any class or section of citizens, and comprises or contains scandalous obscene material. उसके अलावा हो सकता है। एंड जो है ऐसे नाम और ऐसी चीजें जो हमारे एम्बलम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है, वो भी हम नहीं ले सकते। तो ये एक अपने आप में क्रिएटिव है, अपने आप में बोलने की बात है, तो वही वाली बात है। तो ये जो है बताया है कि भाई सबसे पहले एप्लीकेशंस आई 1042 पे, सबसे पहले जियो स्टूडियोज ने दिया, फिर उसके बाद मुंबई बेस्ड मुकेश चेतराम अग्रवाल साहब ने दिया, एंड उन्होंने भी यही दिया, इंक्लूडिंग म्यूजिकल कल्चरल इवेंट्स, टीवी प्रोग्राम्स। एडवोकेट रामचंद्र मांझने साहब के दिया। मांझने इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज क्लेमिंग ट्रेडमार्क इन हिज पर्सनल नेम। ओके, एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स ऑफिसर कमल सिंह ओबरे साहब ने दिया। फिर उसके बाद दिल्ली बेस्ड एडवोकेट आलोक कुमार कोठारी साहब ने दिया। तो वही वाली बात है कि फॉर एजुकेशन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, एंटरटेनमेंट, स्पोर्टिंग एंड कल्चरल एक्टिविटीज। A just payback, Operation Sindoor may have put paid to a brazen existence of terror centers overground in Pakistan। इसकी चर्चा होती रही है, बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान अभी अपनी टेरर पूरे के पूरे नेक्सस को, टेरर पूरे स्ट्रक्चर को खत्म नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो काउंटर टेरर का ग्रिड है वो टॉप गियर में रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अब एक नए न्यू नॉर्मल में वर्क करेंगी। और गोल जो हमारा जीरो टेरर का है वो बिल्कुल ऐसा आइडियलिस्टिक नहीं है, दैट इज ओनली कि पाकिस्तान की कॉस्ट बढ़े, पाकिस्तान का जो स्ट्रेंगल होल्ड है, आर्मी का जो स्ट्रेंगल होल्ड है स्टेट के ऊपर, और फिर टेरर का जो नेक्सस है उसको हमने और भी ज्यादा उजागर किया। सो पाकिस्तान की हमारे प्रति पोस्चरिंग चेंज होगी, बहुत मुश्किल है। दूसरा, क्या इंटरनेशनल पार्लेंस में हमें चीजें और ज्यादा सपोर्ट करेंगी, तो हम कह सकते हैं ऐसा। चाइना का कांस्टेंट प्रेजेंस है, बिल्कुल अभी भी है और आगे भी रहेगा। तीसरा, इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बिल्कुल है। चाहे आप ये कहिए कि मोदी जी ने मान लिया और हमने यूएस की मीडिएशन मान ली, तो ऐसा नहीं है। मीडिएशन एक रियलिटी है शुरू से ही, लेकिन हमने मीडिएशन का मतलब हमने अपने उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो वही वाली बात है कि पाकिस्तान में इंटरनल चैलेंजेस हैं, सिचुएशन पहले से ज़्यादा मैसर हैं, और टेरर का फेस उन्हें डुबाएगा ही। Again, S-400 Akash missiles, K2IF shield against Pak missiles and drones. We know that. We have discussed it. तो आप वैसे भी गूगल करके उसको देख सकते हैं, दैट विल बी बेटर। क्वेश्चन ये है कि इकॉनमी ने क्या किया। इकॉनमी में थोड़ा सा थोड़ा बहुत तो डेंट, हल्का सा एक टेम्परेरी डेंट लगता है, लेकिन देन वी हैव वेरी रॉबस्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। तो रुपी थोड़ा नीचे गया और उसके बाद उसने रिकवर किया। तो वही बात है कि जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं और डॉलर का थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें जाना, इन चीज़ों से इम्पैक्ट होता है। अगेन इन द लॉन्गर रन हमारी इकॉनमी, हमारा कंजम्पशन कैसे वर्क करता है। नाउ 80th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री इन द ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर। ये जो मतलब 1945 से 2025 आप कह लो, रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। तो ग्रेट वॉर उसको कहते हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इट वुड हैव क्रिएटेड, अगर वो हार जाते। और दूसरा, पूरे विश्व के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और उसने बर्बरता को भी दिखाया कि किसी भी युद्ध में जीत सिर्फ नेगेटिविटी की हो सकती है। युद्ध से आप पूरा लॉन्ग टर्म आप युद्ध से जो है पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए युद्ध रास्ता नहीं होना चाहिए। इंडिया ने भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। इंडियन सोल्जर्स फॉर द इटालियंस एंड जर्मन इन अफ्रीका, फ्रांस, इटली, और जापानीज से भी हमने फाइट की। तो वो ये नाजीज वर एडवांसिंग एंड इंडियंस ने हर पार्ट पे इंडियन सपोर्ट क्विक और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डिफरेंट क्लाइमेटिक और जोग्राफिकल कंडीशंस में इंडियंस ने काम किया। उन्होंने रोड बनाई फ्रॉम इंडिया थ्रू बलूचिस्तान टू ईस्टर्न ईरान टू द सिटी ऑफ तबरिज, जहां पर सोवियत ट्रूप स्टेशन थी। टोटल लेंथ ऑफ द रोड बिल्ड बाय इंडियन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन यूनिट वाज मोर देन 1100 किलोमीटर्स। उसमें डेंजरस हाई माउंटेन पासेस भी थी। और आप ये लगा लिए कॉकसस में इतना करना इम्पॉसिबल था उस समय, लेकिन फिर भी हमने किया। तो रॉयल इंडियन नेवी
रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर, उन्होंने 500 के आसपास ट्रिप्स भी किए, एम्युनेशन लेके गए बिटुमेन, और हमारा नहीं था वो। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि दो इंडियन सोल्जर, सूबेदार नारायण राव निकम, हवलदार गजेंद्र सिंह चांद, they were awarded the Soviet Order of Red Star. And on May 7, 2025, a memorial plaque with the names of awardees was unveiled at the Russian House in New Delhi. Merger of the state and general institutions are back on the table because we want them to, be more efficient. We also want them to give better services, और प्राइवेट सेक्टर से compete कर पाएंगे. ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंश्योरेंस आर द अदर. इट इज द लार्जेस्ट अमंग देम, और प्रॉफिट्स भी रेगुलरली हैं. तो यही बात है. इसलिए आप कह सकते हैं कि एफडीआई लिमिट में जो बढ़ाने की बात है, फ्रॉम 74% टू नाउ टू 100%, ये भी मेटरलाइज हो सकती है. इसीलिए सेंट्री इज कीन टू क्रिएट अ जनरल इंश्योरेंस मेजर ऑन द लाइंस ऑफ LIC. जैसे LIC है लाइफ इंश्योरेंस में, द मार्केट शेयर ऑफ द स्टेट रन नॉन लाइफ इंश्योरेंस डिक्लाइन टू 34% फ्रॉम 39%, एंड LIC का मार्केट शेयर जो है वो 57% है. तो इसीलिए गवर्नमेंट वांट्स दैट इट मस्ट बी ब्रिंगिंग मोर ऑन द टेबल, और साथ में बेस्ट ऑफ द सर्विसेज हो, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो. गवर्नमेंट इज लाइक टू इम्प्लीमेंट सीड्स एक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वही बात है, हाई प्रोफाइल न्यूज नहीं है. इसमें आप कह सकते हो कि स्पूरियस सीड हो गया, या क्वालिटी, जो प्योर क्वालिटी ऑफ सीड्स नहीं जाता, उसके वो खत्म करने के लिए द सीड्स एक्ट 1967 रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ सीड्स अवेलेबल फॉर सेल. सो मल्टीपल टाइम लेजिस्लेशन ने अमेंड किया है, सीड्स की क्वालिटी इंप्रूव भी हुई है, लेकिन फिर भी बीच में ओपेकनेस है. और एग्जिस्टिंग प्रोविजन के अंदर सर्टिफिकेशन ऑफ सीड इज नॉट मैंडेटरी. और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, दे आर सेलिंग द सीड एज ट्रूथफुली लेबल्ड. सो ये परव्यू में नहीं आता. तो प्रपोज अमेंडमेंट विल इंश्योर पनिशमेंट फॉर दोज सेलिंग फेक, अडल्टेटेड और लो क्वालिटी सीड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. हरियाणा असेंबली ने भी ऐसा पास किया, 3 साल की सजा मिल सकती है, 5 लाख का जुर्माना. लेकिन वही बात है कि ये हमें इसको और ज्यादा पुश करना होगा. दैट इज गोइंग टू हेल्प अस. CCI रीडिफाइंस टोटल कॉस्ट. तो न्यू रूल्स दिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, न्यू रूल्स टू कीप ए चेक ऑन प्रेडेटरी प्राइसिंग बाय ई-टेलर्स. डेफिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट को रिवाइज किया, क्लियरली इंक्लूड डिप्रिशिएशन and exclude financing overheads. New rules bar the use of market value as an alternative benchmark. तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं. तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप नाक पकड़ के, नाक घुमा के पकड़ रहे हैं, तो उसको CCI रोकना चाहता है. और प्रोडक्शन कॉस्ट को इन्फ्लेट करके दिखाएं, ताकि आप जो है अपनी प्राइसिंग को वो मैनिपुलेट कर सके, डिस्काउंट दे सके. तो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि न्यू रूल्स हैव प्लग द लूप होल दैट वर प्रेजेंट इन द प्रीवियस रेगुलेशन. देयर विल बी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट. सो इसलिए ई कॉमर्स प्लेयर जो हैं प्रोडक्ट्स को डीप डिस्काउंट पे नहीं बेच सकेंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मैकेनिज्म्स दैट दे यूज्ड टू एम्प्लॉय अर्लियर विल नॉट बी अलाउड इन द न्यू रूल्स. सो न्यू रूल्स ने डिनाई कर दिया मार्केट वैल्यू एज एन अल्टरनेटिव बेंचमार्क. So stakeholders have argued that the market value should be an alternative cost benchmark in cases where prices may diverge from the internal cost due to cross subsidization, high cost or advertising based models. तो CCI ने बोला market value does not constitute a cost benchmark as it reflects external factors like consumer willingness to pay and perceived value. तो बात वही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि फेयर मार्केट बनाने के लिए, और जो हमारा रिटेल सेक्टर है उसको ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर को हमारे जिंदा रखने के लिए जो है, ये आप कह सकते हैं कि ये कदम उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है. और ये नए रूल्स के बाद आप जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट गैप देखते हैं, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश है, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फाइट. सर्विस सेक्टर्स का पीटी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि मर्केंडाइज और सर्विस सेक्टर्स जो है, सर्विस एक्सपोर्ट और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स कितना है टोटल हमारे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का, ये हमारे को परसेंटेज पता होना चाहिए. सो वही वाली बात है, 34% था फाइनेंशियल 15 में, अब जो है 47% हो चुका है. और सर्विस एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग मैन एवरेज ऑफ मोर देन 10%. लेकिन मर्केंडाइज शिपमेंट्स में स्लम्प है. और जो शेयर ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स, जबकि हमें एक इम्पोर्ट इंटेंसिव एंड लो वैल्यू एडिशन कैटेगरी इसको आप कह सकते हैं, वो भी 14% से 21% हुआ है. तो ये आपको पता होना चाहिए. अब DOT ने अप्रूव किया स्टारलिंक को, एंड इट इज गोइंग टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स. So it will start making the ground infrastructure, and then company has formed partnership with the Jio and Bharti Airtel. And
It is actively scouting locations to establish earth stations. So that is a positive news, and already we have said it can now proceed with the investments while awaiting further approvals from InSpace. तो InSpace ने InSpace उसको मौका देगा, that is Indian National Space Promotion Authorization Center. और आप कह सकते हैं कि इट विल बी अ गेम चेंजर। ये ये जो भी होगा, उसके बाद डीओटी और टीआरएआई का रोल है डिजिटल कम्युनिकेशंस को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन, और जहाँ जहाँ पर नेटवर्क नहीं पहुंच सकता उसके लिए बात है। रिटेल एल्गो ट्रेडिंग मेक सिंपलर एंड सेफर, एनएससी ने गाइडलाइंस इशू की रिटेल पार्टिसिपेशन में एल्गोरिदम ट्रेडिंग में। मार्केट रेगुलेटर चाहता है कि आम आदमी को नुकसान ना हो, बेटर ओवरसाइट हो। तो वही बात है, इसीलिए एल्गो ट्रेडिंग में उनको एक्सेस दे दिया गया है, और सेफर पार्टिसिपेशन होगा, और साथ में जो है ग्रीवेंसेस हैंडलिंग भी बेटर हो जाएगी। तो ये अपने आप में ओपेकनेस को ख़त्म करने के लिए है, और हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट मेच्योरिटी की तरफ आएगा। एंड देन रिटेल इन्वेस्टर्स को जब स्टॉक ब्रोकर एपीआई एक्सेस देंगे, तो रिटेल क्लाइंट मस्ट प्रोवाइड द ब्रोकर विद द स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो उससे मैपिंग हो जाएगी, जैसा हमने पहले भी बात की थी। और उसके बाद जो है वो आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। सेम ही सिर्फ आप जो है से जो क्लाइंट आपकी सेम फैमिली में, सिर्फ उन्हीं को आप कर सकते हैं। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ अ स्टेप विच इज गोइंग टू मेक इम्पैक्ट। सर्विलेंस ज़्यादा अच्छा होगा, ट्रेसेबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, और आप कह सकते हैं इससे मैनिपुलेशन कम होंगे। तो वही बात है, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, रॉन्ग इनपुट हो सकता है, इमोशनली ड्रिवन डिसीजन हो सकते हैं, हायर प्रॉफिट्स इन एल्गो ट्रेडिंग रिजल्टिंग इन हायर प्रॉफिट्स अदरवाइज नॉट अचीवेबल। सो एल्गोरिथमिक ट्रेड्स करंटली अकाउंट फॉर 43% ऑफ द स्टॉक मार्केट। ग्लोबल 75% है। इन यूएस 90% ऑफ इक्विटी मार्केट टर्नओवर इमर्ज फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्राम ट्रेड्स। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स अकाउंट फॉर एज मच 50%, आप सोचिए। सो दे कैपिटलाइज ऑन स्मॉल प्राइस डिफरेंशियल यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर जनरेटेड टूल्स। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो उससे मार्केट वॉलिटिलिटी भी हो जाती है। तो ह्यूज कंसर्न इन स्टॉक मार्केट है वो ग्लोबली। And they are also highly active in commodities and currency markets. So regulators globally are weighing the risk versus the return of such ultra fast computer traders. तो एल्गोरिदम आ गए हैं, तो जो ह्यूमन माइंड कैलकुलेट नहीं कर सकता, मशीनों से करने की बात है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स की बात है। लेकिन वही बात है कि ये इनइक्वलिटी या फिर गैप को बढ़ाने की बात बढ़ाएगा। बिल गेट्स ने अपना यूएस $200 बिलियन को उन्होंने जो है देने की बात की है, और चाहते हैं कि वही पुअर से पुअरेस्ट को मदद मिले। और साथ में आप ये भी कह सकते हैं यूएस एड के फेवर में थे वो। एंड आप ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रेड के जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा रहा है। और कई ऐसे ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स या फिर बाकी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव रहे हैं जिसके अंदर बिल गेट्स फाउंडेशन ने इंडिया में मदद की है। IMF should look deep within before bailing out Pak, बात बिल्कुल सही है। लेकिन IMF will be going by its own prudent and diligent understanding। लेकिन इंडिया का स्टैंड यही है कि IMF जो है, पाकिस्तान जब से उसका मेंबर बना है, तो 25 बार से ज्यादा 1950 के बाद से अब तक ले चुका है। IMF फिर भी 7 बिलियन एड पैकेज इस्लामाबाद को दे रहे हैं, और वो कहाँ यूज करता है वो देखने वाली बात है। तो परमेश्वर अय्यर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द वर्ल्ड बैंक, और इंडिया के नॉमिनी है वो। क्रूशियल जो मीटिंग है 9 मई को, जो हमने बात की थी, जो हो चुकी है। सो दैट इज वाई इंडिया इंटेंड्स टू स्पीक अप टू ऑल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स टू पुश बैक अगेंस्ट फंडिंग लोन्स टू पाकिस्तान, बिकॉज टेरर एंड वर्क कैन नॉट गो टुगेदर। पाकिस्तान मस्ट बी ब्रॉट बैक इनटू द ग्रे लिस्ट ऑफ एफएटीएफ, जिसकी चर्चा हमने अलग से भी की है। क्लीनिंग यमुना के लिए क्या सिर्फ पैसा चाहिए? प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस और इंटरव्यू के लिए आप सोच सकते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी चाहिए, और सीवेज पाइपलाइन भी चाहिए, और जो है आपको सीवेज को पूरा डाइवर्ट करने का भी पूरा सिस्टम चाहिए। लेकिन यमुना जो है वो सिर्फ पानी से साफ नहीं हो सकती। रियलिटी यही है कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जो लोग हैं, सीवेज इज नॉट इंटरसेप्टेड एंड देयरफॉर नॉट ट्रीटेड। दैट इज द होल क्वेश्चन। एंड यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ट्रीटेड वाटर इज नॉट डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स where it is meeting untreated wastewater। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एसटीपीज को अपग्रेड किया जाए, और 2 मेजर ड्रेन जो नजफगढ़ शाहदरा ट्रेन है, दे कंट्रीब्यूट टू द 84% ऑफ द पॉल्यूशन टू यमुना, उस पर भी वर्क किया जाए। ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट टू बी एनरोल्ड इन लखनऊ। 80 to 100 मिसाइल्स पर ईयर वो बनाएगी। तो ये इंडिजिनाइजेशन का
हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का रोल है, और डिफेंस कॉरिडोर का रोल है। और पीएम साहब ने 2018 में अनाउंस किया था लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, झांसी, आगरा एंड चित्रकूट, ये लैंड पार्सल्स जो हैं वो मदद करेंगे ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ पॉजिटिव न्यूज। एंड आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी बीएचयू, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीड्स के लिए उनको लिया गया है, और उनको ऑलरेडी मोर देन 28,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्ट प्रपोजल्स मिल चुके हैं। निपाह वायरस प्रिवेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है। निपा वायरस अभी फर्स्ट टाइम आउटब्रेक नहीं हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज भोपाल, उन्होंने इस विषय में बार बार बोला है कि कैसे फ्रूट बैट्स सोर्स हो सकते हैं, उससे इन्फेक्शन फैलता है। और द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज ऑफ वायरस वाज डिटेक्टेड इन फ्रूट बैट्स, सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम पंडिकाड विलेज वेयर द विक्टिम वाज फ्रॉम। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन हमें यही देखना है कि आपको इसका पूरा केस स्टडी की तरह बेस के हिसाब से आना चाहिए। न्यू स्मार्ट ड्राइवर्स हाईलाइट नीड फॉर सेफगार्ड्स इन द प्लेटफॉर्म बेस्ड सेक्टर। बात बिल्कुल हमने गिग वर्कर्स की भी ऐसे ही की है, और हमने यू नो हमने स्ट्रीट वेंडर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसे ही सोचा है। और वर्कर्स जो है एंटरप्रेन्योर, एक जो लीडरशिप होती है उसको आगे प्रमोट करना चाहिए। वर्कर्स आर पार्टनर्स, they are not just workers, they are partners, and they are the one who are running the platform effectively, चाहे वो जोमेटो हो चाहे वो स्विगी हो। इसीलिए उनकी जो एक्सप्लोइटेशन है वो रोकना पड़ेगा। लेकिन ब्लू स्मार्ट यूनिक था। प्लेटफॉर्म ओन द कार्स, अंडरटुक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर वुमेन ड्राइवर्स एंड इवन ऑफर्ड मिनिमम गारंटी इनकम्स टू इट वर्कर्स। Yet when the crisis hit, drivers were left without protection। तो यही वाली बात है, स्टेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज, उसके दो फॉर्म होगी। लीगल फ्रेमवर्क है कि सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। राजस्थान में बिल पास हुआ है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में क्लियर हुआ है, तेलंगाना ने बिल बनाया। एंड एन अल्टरनेटिव कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म मॉडल, हमने बात भी की है टैक्सी के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी होनी चाहिए। तो मैनी प्लेटफॉर्म्स, they impossibly set up such high standards, it is very difficult for the workers to maintain। एंड वो रेटिंग इतनी हाई होती है कि वो जॉब भी छोड़ देते हैं और उनको इतना फायदा भी नहीं होता। तो इट इज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। तो इसलिए इंटरवेंशन चाहिए कि प्लेटफॉर्म्स कैसे ऑपरेट करते हैं, ज़्यादा ह्यूमन होने चाहिए, और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक वर्किंग होनी चाहिए। और वही जैसे हम ब्यूरोक्रेट्स के लिए बोलते हैं कर्मयोगी, ऐसे ही एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर प्लेटफॉर्म्स पब्लिक सर्विसेज को दे सकें और दो पैसे भी कमा सकें। द लॉ ऑन चाइल्ड लेबर इज नॉट द प्रॉब्लम। इन्फोर्समेंट की बात हमेशा से हुई है। गवर्नमेंट की एपैथी की अगर बात की जाए तो क्या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या कर रही है? दूसरा, क्या स्टेट गवर्नमेंट का रोल है? जैसे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तीसरा, जैसे अभी दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट किया कि सही बच्चे को स्कूल में पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। चौथा, हमें देखना है कि भाई कि भाई कैसे आप चाइल्ड लेबर को, सिर्फ लेबर ही नहीं, वो हीनियस क्राइम है। लेबर डे में जब आप देखते हैं कि मिलियंस ऑफ वर्कर्स आर देयर, और चाइल्ड लेबर आप देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी साहब को तो नोबेल प्राइज भी मिला। तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ है ये, चाइल्ड चाइल्ड लेबर इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ लेबर। मतलब ये बहुत ही घिनौना है। हाइजीन, सैनिटेशन, क्लीन वाटर, और सिर्फ बीमारियां ही नहीं होती, पूरा एक तरीके से सोशल क्राइम ही हो गया। आप लगा लीजिए एक जुबिलेंट, एक एक तरीके से समाज का जो है विकृतियां बढ़ती चली जाएगी। चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी आर वेरी मच लिंक्ड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट चाहिए आर्टिकल 24 का, 14 साल से कम उम्र में। और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 और ज्यादा अच्छे से होना चाहिए। एंड सिर्फ डेलीगेशन के उससे जाने से नहीं होगा। एंड आप कह सकते हैं कि उसके लिए आपने ग्रास रूट लेवल पे क्या किया। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी बियॉन्ड देयर ओन फायदा देना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। बाकी हम चर्चा करेंगे कि कैसे चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जा सकता है। इस पर ही आप एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। लियो 14 फर्स्ट अमेरिकन टू बिकम पॉन्टिफ, दैट इज इंपॉर्टेंट, आप नाम जान लीजिए। न्यूजीलैंड हैज मोर शीप देन पीपल बट ह्यूमंस आर कैचिंग अप। तो वही बात है, फॉलिंग वुल प्राइसेस, शिफ्ट टू सिंथेटिक फाइबर्स फोर्स वुल फार्मर्स टू शिफ्ट टू डेयरी फार्मिंग एंड पाइन फॉरेस्ट्री। तो कमाल की बात है, गजब की बात है। तो ये नहीं कह सकते कि हम पूरा सब कुछ जो दिखता है वो बिकता है, या जो दूर के ढोल सुहावने वाली बात है। तो वास्ट नंबर ऑफ शीप्स इन न्यूजीलैंड relative to the country's human population has been long subject of jokes. So country is one of the handful countries in the world that still is home to more sheep than people. According to Leaf Fever Release, the population of sheep is 23.6 million sheep, and there are 5.3 million people. So there are about 4.5 sheep for each New Zealander। बताइए आप, यानी
50 लाख की आबादी है, लेकिन आप देखिए कि आप वहां पर कितने शीप कितनी है। तो दैट इज वाई एक समय में 22 शीप पर पर्सन हो सकती थी 1982 में। न्यूजीलैंड इज द बिगेस्ट अर्नर इन टर्म्स ऑफ मीट एंड वूल, लेकिन वूल के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए बिगेस्ट नुकसान है। न्यूजीलैंड इज अबाउट द साइज ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, बट इट हैज a human population 13 times smaller than UK. So plenty of room for the sheep. So sheep industry was backbone of New Zealand's economy. 1982 से 1995 तक जो है वो पीक पे आया। लॉर्ड ऑफ रिंग्स ने टूरिस्ट लेके आए, ग्रीन फील्ड्स विद प्रेशियस शीप बैकड्रॉप, स्नो कैप माउंटेन्स। तो ये पूरा एक तरीके से विजुअलाइजेशन करा दिया। एंड आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे चीजें चेंज हुई। फार्मर्स आर ट्राइंग समथिंग न्यू। सो आप लॉबी है, शीप फार्मर्स हैव स्विच टू मोर लुक्रेटिव परस्यूट, डेयरी और द कन्वर्जन ऑफ लैंड फ्रॉम फार्मिंग टू पाइन फॉरेस्ट्री, कार्बन ऑफसेट्स के लिए। तो वुड इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट एट द टिपिंग पॉइंट। सो मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट, लेकिन वही बात है, इंडिया ने तो हमेशा से अपने जब भी इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए की बात हुई है या जब भी हुआ है, तो इंडिया ने हमेशा यू नो इस बात की बात की कि जो इंडिया के क्रूशियल एसेट्स हैं, क्रूशियल डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें ऐसा ना हो पाए। So with this, we end our discussion. You please pick up 2 or 3 important questions and try to frame critical notes on them, and we will discuss further in the next interaction. Thank you very much.